رات کا پچھلا پہر تھا۔ بغداد کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن چاندنی رات ریت کے ذروں پر ایک سنہرا جادو بکھیر رہی تھی۔ شہر کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ تلخاق کہتے تھے۔ وہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور خاموش طبع تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے پر پرانی اینٹوں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں کمہار رہتا تھا۔ اس کا نام سالم تھا اور اس کا بیٹا زید کمہار کا بیٹا تھا، مگر باتوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ بچپن سے ہی سوال پوچھنے اور مشورے دینے کی عادت نے اسے گاؤں کے ہر فرد کا خاص بنا دیا تھا۔ لوگ کہتے، زید صرف مٹی کے برتن نہیں، عقل کے برتن بھی بناتا ہے۔ زید روز اونٹوں پر مٹی لے کر قریبی شہر بیچنے جاتا، اسی لیے گاؤں میں اسے اونٹ والا کہا جانے لگا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی اونٹ والا ایک دن بغداد کے تخت کی تقدیر لکھے گا۔ ایک دن شہر کے مرکز میں بغداد کے خلیفہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے 3 بیٹوں کو بادشاہی کے قابل بنانا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ ان سب کا امتحان لے گا۔ امتحان عقل کا ہوگا، دولت کا نہیں۔ خلیفہ نے 3 شہزادوں کو بلایا اور کہا، ہر شہزادے کو 2 ماہ دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے سفر میں کوئی ایسا ہنر سیکھنا ہوگا، کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ حل کرنا ہوگا جس سے پتہ چلے کہ وہ رعایا کا حقیقی محافظ بن سکتا۔ شہزادے رخصت ہو گئے۔ ایک تجارت کی طرف نکلا، دوسرا جنگجوؤں کے درمیان، اور تیسرا قسمت کا کھیل تھا، تلخاق کی طرف جا نکلا۔ شہزادہ جمال، خلیفہ کا سب سے کم گو اور سوچنے والا بیٹا، ایک دن سفر کرتے کرتے تلخاق پہنچا۔ دوپہر کی تپش میں جب پانی کی سخت کمی محسوس ہوئی تو وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک نوجوان اونٹ پر مٹی کے برتن لیے جا رہا تھا۔ وہ رک کر بولا، اجنبی ہو؟ شہزادے نے نظریں اٹھائیں، پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، ہاں، مگر لگتا ہے تمہارا پانی میرا اپنا ہو جائے گا۔ زید ہنسا، پانی تو بانٹنے کے لیے ہے، مگر پیاس کی پہچان ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ شہزادہ چونکا، اسے پہلی بار کسی عام انسان کی زبان میں علم کی جھلک نظر آئی۔ زید نے پانی دیا، ساتھ بیٹھا اور پوچھا، شہزادے لگتے ہو، مگر خاک جیسے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غرور ساتھ نہیں لائے۔ تم نے مجھے پہچانا؟ نہیں، صرف تمہاری آنکھیں بول رہی ہیں۔ شہزادہ جمال نے پہلی بار کسی اجنبی سے دل کھول کر بات کی۔ اس نے خلیفہ کا امتحان، اپنی بے چینی اور بھائیوں کی تیز رفتاری کا ذکر کیا۔ زید خاموش رہا اور پھر بولا، عقل کبھی بھاگ کر نہیں آتی، وہ تو خاموش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ اگر تم چاہو تو اگلے 7 دن میرے ساتھ رہو، تمہیں وہ سیکھنے کو ملے گا جو کتابوں میں نہیں، ریت میں چھپا ہوتا ہے۔ شہزادہ تیار ہو گیا۔ پہلا دن زید اسے مٹی کھودنے کے لیے لے گیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگ ہنستے رہے، شہزادہ آیا ہے یا مزدور؟ لیکن زید نے کہا، جس نے ریت میں ہاتھ نہ ڈالے وہ ہیرے کو کیسے پہچانے گا؟ دوسرا دن زید نے اسے بازار لے جا کر مٹی کے برتن بیچنے سکھا۔ لوگ چخ چخ کرتے، دام کم کرتے، باز ہنسی اڑاتے۔ شہزادہ خاموش سہتا رہا، مگر شام کو زید نے کہا، آج تم نے عزت کو سیکھا جو خاموشی سے بھی کمائی جا سکتی ہے۔ تیسرے دن شہزادہ اور زید ایک بیمار بوڑھے کے گھر گئے۔ زید نے اس کے گھر کی صفائی کی، دوا دی اور شہزادے سے کہا، یہ وہ تخت ہے جو تمہیں نہیں ملے گا، مگر اسی پر بیٹھ کر انسان بنتا ہے۔ چوتھے دن زید نے اسے خود سے حساب لگانا سکھایا، وزن، قیمت اور نفع کا۔ شہزادے نے کہا، مجھے تو تاج کا حساب آتا ہے، یہ چھوٹے حساب کیوں؟ زید نے مسکرا کر جواب دیا، جو بڑے حساب میں کامیاب ہونا چاہے، اسے چھوٹے حساب سے انصاف آنا چاہیے۔ پانچویں دن زید نے شہزادے کو ایک فقیر کے سامنے کھڑا کیا اور خاموش تماشائی بن گیا۔ فقیر نے شہزادے کو گالیاں دیں، جھوٹ بولے، مگر شہزادہ چپ رہا۔ بعد میں زید نے کہا،
یہ آج کا امتحان تھا کہ تم رتبے کو سنبھال سکتے ہو یا نہیں۔ چھٹے دن شہزادے نے خود مانا، زید تم ایک عقل مند ہو، میں تمہیں اپنا استاد ماننا چاہتا ہوں۔ زید نے نظریں نیچی کیں اور کہا، عقل وہی ہے جو کسی کو استاد بننے سے روکے اور شاگرد بننے کا ہنر سکھائے۔ ساتویں دن خلیفہ نے شہزادوں کو واپس بلایا۔ تینوں بھائی دربار میں حاضر ہوئے۔ پہلا شہزادہ سونا، موتی، قیمتی چیزیں لایا، دوسرا جنگجوؤں کا لشکر، مگر جب جمال آیا تو خالی ہاتھ تھا۔ کیا تم خالی ہو گئے ہو جمال؟ خلیفہ نے پوچھا۔ جمال نے کہا، نہیں ابا جان، میں خالی ہو کر سیکھا ہوں کہ بھرنے کے لیے خالی ہونا ضروری ہے۔ میں اپنے ساتھ ایک عقل مند انسان کا سبق لایا ہوں جو کمہار کا بیٹا ہے مگر بادشاہوں کا استاد بن سکتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ نے کہا، اسے فوراً دربار میں لایا جائے۔ بغداد کے شاہی محل کے بڑے دربار میں ایک عجیب خاموشی طاری تھی۔ خلیفہ، وزراء، علماء، شہزادے اور درباری سب اپنی نشستوں پر تھے، لیکن ان کی نظریں دروازے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ شاہی دروازہ کھلنے ہی والا تھا جہاں سے وہ شخص داخل ہونے والا تھا جس کے بارے میں شہزادہ جمال نے اعلان کیا تھا۔ میں ایک عقل مند انسان سے ملا ہوں جو کمہار کا بیٹا ہے، نہ تخت پر بیٹھا نہ مدرسے میں پڑھا، مگر میں نے اس سے وہ سیکھا جو بادشاہی سے پہلے جاننا چاہیے۔ دربار کا ماحول سنجیدہ تھا۔ کچھ لوگ مذاق کر رہے تھے، کچھ حیرت زدہ تھے۔ وزراء کے چہرے شک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمہار کا بیٹا بادشاہی کے امیدوار کو عقل سکھائے گا؟ اور پھر دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ دو سپاہی آگے بڑھے اور دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوا ایک نوجوان، سادہ لباس، پاؤں ننگے، ہاتھ میں اونٹ کی مہار اور آنکھوں میں وقار۔ یہ زید تھا، وہی کمہار کا بیٹا جسے دنیا اونٹ والا کہتی تھی۔ خلیفہ نے پہلی ہی نظر میں کچھ محسوس کیا۔ اس نوجوان میں غرور نہیں تھا مگر ایک غیر مرئی طاقت تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور کیا دینے آیا ہے۔ زید نے دربار میں قدم رکھا اور بغیر کسی جھجک کے زمین پر ہاتھ رکھ کر خلیفہ کو سلام کیا۔ اس کی عاجزی میں ایسا وقار تھا کہ کئی وزراء دم بخود رہ گئے۔ خلیفہ نے کہا، کمہار کے بیٹے، تمہیں معلوم ہے یہ دربار ہے، یہاں بادشاہ بولتا ہے، رعیت سنتی ہے۔ زید نے مسکرا کر کہا، اور جہاں عقل بولتی ہے وہاں بادشاہ بھی سیکھنے آتا ہے۔ پورا دربار ساکت ہو گیا۔ کچھ لمحے کو ایسا لگا جیسے زید نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ خلیفہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پہلا سوال پوچھا، بتاؤ، اگر تین بادشاہ ایک چھوٹے تخت کے لیے لڑ رہے ہوں تو عقل کا تقاضا کیا ہوگا؟ زید نے جواب دیا، اگر وہ واقعی بادشاہ ہوں تو کسی کو تخت کی ضرورت نہیں، اور اگر تخت چاہیے تو وہ بادشاہ نہیں، تاج کے غلام ہیں۔ دربار میں جیسے کسی نے ہوا روک دی ہو۔ خلیفہ نے شہزادے جمال کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ دوسرا سوال، اگر کسی فقیر کے پاس سونا ہو اور وہ کسی بھوکے کو کھانا نہ دے تو وہ فقیر کہلائے گا؟ زید نے آہستہ سے کہا، وہ فقیر نہیں، وہ سونے کا غلام ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو دل کی زمین پر رحم اگاتا ہے۔ اس جواب پر درباری عالم بھی سر جھکا گئے۔ خلیفہ نے پھر پوچھا، تمہیں اگر بغداد کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پہلا کام کیا کرو گے؟ زید نے بغیر لمحہ ضائع کیے کہا، میں دربار کے آئینے بدلوں گا تاکہ ہر شخص اپنا اصل چہرہ دیکھ سکے، بادشاہ ہو یا فقیر۔ خلیفہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اور اگر بادشاہ خود اپنا چہرہ دیکھنے سے انکار کرے؟ زید بولا، پھر بادشاہ نہیں، آئینہ بدلنا پڑے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلیفہ کو یقین ہو گیا شہزادہ جمال نے جس شخص کو استاد مانا وہ واقعی عقل کا وارث تھا۔ وزراء کے چہروں پر خجالت تھی۔ وہ جنہوں نے زید کو اونٹ والا کہہ کر حقیر جانا تھا،
अब उसके एक लफ्ज से सीख रहे थे। तब खलीफा ने सब शहजादों से एक एक करके सवालात किए। पहला शहजादा बोला, मैंने तिजारत सीखी, सोना कमाया और दुश्मनों से दोस्ती बनाई। खलीफा ने कहा, अच्छा है, लेकिन सोना दिल नहीं खरीद सकता। दूसरा शहजादा बोला, मैंने जंग सीख ली, सिपाही तैयार किए और हुनर में महारत हासिल की। खलीफा बोला, हुनर काबिले फख्र है, लेकिन अगर तलवार बगैर अक्ल के चलाई जाए तो अपना ही गला काटती है। तीसरा जमाल खामोश रहा। खलीफा ने कहा, तुम क्या लाए हो? जमाल बोला, मैं वो लाया हूं जो दिल, दिमाग और नियत को एक सफ़े पर लिखता है। मैं ज़ैद को लाया हूं। खलीफा ने ज़ैद से कहा, अगर तुम्हें हक दिया जाए कि तीनों शहजादों में से किसी एक को बादशाह चुनो तो तुम क्या फैसला करोगे? ज़ैद ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं खुद से 3 सवाल पूछना चाहता हूं और उनके जवाब तीनों शहजादे दें। जो सच बोलेगा वो बादशाह होगा। खलीफा ने इशारा दिया, पूछो। ज़ैद ने पहला सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी को इस वक्त नजरअंदाज किया जब वो तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत में था? पहला शहजादा झिझका, दूसरे ने नजरें चराईं और जमाल ने कहा, हां, अपने बचपन के एक गुलाम को जब वो रो रहा था। आज भी वो याद आता है। दूसरा सवाल, क्या तुमने कभी गलती मानी है बगैर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे? दोनों बड़े भाई खामोश। जमाल ने कहा, मैंने ज़ैद के सामने अपनी कम इल्मी तस्लीम की और उसी से मैंने सीखा। तीसरा सवाल, क्या तुम सच के लिए तख्त छोड़ सकते हो? सिर्फ जमाल बोला, अगर सच मेरा इम्तिहान ले तो मैं तख्त के साथ अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। खलीफा उठा और तख्त से नीचे आ गया। ज़ैद के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बादशाह नहीं बनना चाहते, इसीलिए तुम बादशाह बनाने के काबिल हो। फिर खलीफा ने जमाल को गिले लगाया और बोला, मेरा ताज आज इस शहजादे के सर पर होगा जिसने कुम्हार के बेटे से अक्ल खरीदी, गुरूर नहीं। और यूं एक ऊंट वाला तारीख का वो बाब लिख गया जो अक्ल, आजिजी और अदल से लबरेज था। बगदाद के शाही दरबार में ऐलान हो चुका था। शहजादा जमाल को वली अहद नामजद कर दिया गया था और यह फैसला सिर्फ खलीफा की नजर का कमाल ना था, बल्कि इस नौजवान ज़ैद की दानिश का असर था जिसे लोग कल तक ऊंट वाला कहते थे। मगर जब जश्न की तैयारी हो रही थी, शहर में चरागा किया जा रहा था, शहजादा जमाल को शाही खिलत पहनाई जा रही थी, एन इस वक्त ज़ैद दरबार से खामोशी से बाहर निकल चुका था। ना कोई दरबारी उसे रुखसत करते देखा, ना खलीफा को इत्तला दी गई। ये वही ज़ैद था जिसने तख्त के फैसले पर असर डाला, लेकिन खुद एक लफ्ज भी अपनी तारीफ में न कहा। वो चलता रहा, वही पुरानी ऊंट की महार हाथ में, वही बोसीदा लिबास और वही नजरें जिनमें दुनिया की गहराई छपी थी। महल से निकलते ही इसने दरबार के दरवाजे पर एक सिपाही से पूछा, बाहर का रास्ता कहां जाता है? सिपाही ने हैरानी से जवाब दिया, यह तो बगदाद से बाहर रेगिस्तान के इस हिस्से को जाता है जहां ना कोई रहता है ना कोई जाता है। ज़ैद ने सर हिलाया और चल पड़ा, जैसे इसे इस सुनसान रास्ते पर जाना ही था। शहजादा जमाल को जब दरवेशों के कमरे में इत्तला दी गई कि ज़ैद चला गया है, तो उसके दिल पर एक अनजानी सी खलिश छा गई। क्यों गया? जमाल ने हैरत से पूछा। जिसने मेरे सर पर ताज रखवाया वो खुद खामोशी से दरवाजा बंद करके चला गया। खलीफा को भी इत्तला मिली। वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में नमी आ गई। जमाल, ज़ैद अपनी जगह जानता है। कुछ लोग तख्त पर बैठने नहीं, तख्त वालों को सीधा करने आते हैं। जमाल खामोश रहा। उसने फैसला किया कि वो ज़ैद को वापस लाएगा। ज़ैद बगदाद से बाहर सहरा के कोने पर एक पुरानी खानका में पहुंचा। ये वो जगह थी जहां सिर्फ वही आते थे जिनका दिल बोझल हो,
मगर जबान खामोश। खानका में एक बुजुर्ग दरवेश मौजूद था, सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और हाथ में खाकी तस्बीह। आ गए? दरवेश ने कहा, जैसे बरसों से मुंतजर हो। जैद ने हैरत से पूछा, अब मुझे जानते हैं? तुमसे पहले तुम्हारा इल्म यहां पहुंच चुका था। बगदाद तो सिर्फ आगाज था, असल सफर तो अब शुरू हुआ है। जैद ने दरवेश के कदमों में बैठकर सवाल किया। मैंने जो कुछ किया वो काफी था। दरवेश ने गहरी सांस ली। तुमने जमाल को तख्त पर बिठाया, मगर तुम्हारा असल इम्तिहान अभी बाकी है। और वो क्या है? तुम्हें 3 वही शहजादे वापस मिलेंगे, मगर नए रूप में। और तुम्हें पहचानना होगा कि कौन अक्ल सीख चुका और कौन सिर्फ जबान से दानाई का दावा करता है। जैद हैरान हुआ, मगर वो तो बादशाही पा चुका। बाकी दोनों अपने रास्ते पर चले गए। जिंदगी एक बार सबक देती है, लेकिन बाज बार शागिर्द बार बार वापस आते हैं। इधर बगदाद में कुछ अजीब हो रहा था। शहजादा जमाल अपनी नई जिम्मेदारियों में मसरूफ था, मगर अंदर से खाली महसूस करता था। हर मशवरा देते हुए इसे जैद की खामोशी याद आती, हर फैसले में उसकी बसीरत गूंजती। और जल्द ही इसने देखना शुरू किया कि इसके दोनों भाई, जिन्हें शिकस्त का जायका बर्दाश्त न हुआ, वो शहर के अंदर साजिशें करने लगे थे। एक रात दरबार के एक गुलाम ने जमाल को चुपके से इत्तला दी, जनाब, आपके भाइयों में से एक वजीर के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा है और दूसरा अवाम को कायल कर रहा है कि तख्त का फैसला गलत हुआ। जमाल को एहसास हुआ कि बादशाही संभालने के लिए इल्म काफी नहीं, रहनुमाई भी दरकार है। वो फौरन खानका की तलाश में निकल पड़ा। इधर जैद दरवेश की सोहबत में 3 दिन गुजार चुका था। वो अब ज्यादा गहरा सोचने लगा था, ज्यादा खामोश रहता, ज्यादा सुनता। दरवेश ने इसे एक आखिरी नसीहत की, वापस जाओ, मगर दरबार में नहीं, लोगों में। वहां तुम्हारा असल इम्तिहान है। चौथे दिन बगदाद की एक पुरानी बस्ती में एक फकीर ने ऐलान किया, जैद वापस आ गया है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जमाल भी उसी वक्त उसके पास पहुंचा, गिले लगाया। इसकी आंखों में आंसू थे और बोला, तुमने तो मुझे छोड़ दिया जैद, मैं कमजोर पड़ने लगा था। जैद ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तुम तख्त पर बैठो तो यकीन रखो तुम तन्हा नहीं, लेकिन अगर तख्त दिल में बैठ जाए तो सब अकेले हो जाते हैं। जमाल ने आजिजी से कहा, मेरा तख्त हिलाया जा रहा है, साजिशें हो रही हैं, तुम्हारी जरूरत है। जैद मुस्कुराया, फिर तुम्हें वो करना होगा जो सबसे मुश्किल है। क्या? अपने दुश्मनों को संभालना, मारना नहीं। और यही वो जगह थी जहां अक्ल का इम्तिहान और किस्मत का खेल एक बार फिर आपस में उलझने वाला था। बगदाद की फिजा बदली हुई थी। तख्त पर जमाल बैठा जरूर था, लेकिन फिजा में एक बेचैनी सी फैल गई थी, जैसे हुआ किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। दरबारी नजरें चरा रहे थे, वजीर चालाकी से मशवरे दे रहे थे, और शहर के 2 कोने किसी छपी हुई साजिश की चालों से गूंजने लगे थे। जैद ने वापस आकर खामोशी इख्तियार की। वो ना दरबार गया, ना किसी को बताया कि वापस आया है। वो बगदाद की एक पुरानी खानका के अकब में एक खामोश जगह पर चंद नौजवानों को इल्म और हिकमत सिखाने लगा। इसका मानना था कि अगर एक बाशऊर इंसान तैयार कर दिया जाए तो वो एक सल्तनत का चेहरा बदल सकता है। लेकिन तख्त की चालें तेज हो रही थीं। शहजादा तलहा और शहजादा हारिस दोनों अपने अपने हलकों में वफादारी की पींगें चढ़ा रहे थे। तलहा जोरावर जर्नलों को अपनी तरफ कर रहा था, जबकि हारिस माल और दौलत बांटकर वजीरों की वफादारी खरीद रहा था। एक रात शहजादा जमाल अपने कमरे में बैठा जैद के पुराने अक़वाल को एक किताब में लिख रहा था। इसकी नजरें रुकी और दिल ने सरगोशी की। वक्त आ गया है, सच और झूठ का आखिरी इम्तिहान लेना होगा। अगली सुबह बगदाद के मरकजी चौक में एक ऐलान चस्पा हुआ,
तीनों शहजादे एक आखिरी महफिल में बुलाए जा रहे हैं। ना दरबार होगा, ना फौज, ना हथियार, बस एक चादर, कुछ सवाल और सच का मैदान। हाजिर होना लाजिम है। ऐलान पर दस्तखत था। जैद अब्ने सालम अक्लमंद ऊंट वाला। पूरे शहर में हलचल मच गई। क्या जैद वापस आ गया है? क्या शहजादे दोबारा मुकाबला करेंगे? क्या खलीफा ने इजाजत दी है? खलीफा ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वो जानता था कुछ इम्तिहानात तख्त से नहीं वक्त से लिए जाते हैं। 3 दिन बाद बगदाद के बाहर एक वसी बाग में एक चादर बिछा दी गई। ना तख्त था, ना शाही झंडा, बस एक सायादार दरख्त, नीचे चादर और सामने जैद अपने मखसूस सादा लिबास में ऊंट की महार पास रखी हुई। तीनों शहजादे जमाल, तलहा और हारिस आ गए। जैद ने उनकी तरफ देखकर कहा, आज बादशाहत का फैसला नहीं होगा, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर फैसला होगा। मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा, लेकिन ये सवाल ज़बानी नहीं, अमली होंगे। तुम्हें खुद को साबित करना होगा, अल्फाज से नहीं, अमल से। तीनों ने इस बात में सर हिलाया। जैद ने पहला सवाल दिया, तुम्हारे पास 10 अशरफियां हैं और तुम्हारे सामने 3 फकीर हैं, लेकिन इनमें से एक झूठा है और तुम्हें अंदाजा नहीं कि कौन। तुम क्या करोगे? तलहा फौरन बोला, मैं तीनों को दे दूंगा, बाद में सच झूठ खुद सामने आ जाएगा। हारिस ने कहा, मैं सबसे होशियारी से सवालात करूंगा, जो गड़बड़ करे इसे महरूम कर दूंगा। जमाल ने खामोशी से कहा, मैं तीनों को 2-2 अशरफियां दूंगा और बाकी 4 अशरफियां ऐसे रख दूंगा कि जो वाकई मोहताज हो वो खुद आकर मजीद मांग ले, क्योंकि सच्चाई खुद को छुपाती नहीं। जैद ने मुस्कुराकर अगला सवाल दिया, तुम्हारा दुश्मन जख्मी होकर तुम्हारे दर पर आ जाए, मदद मांगे, मगर तुम्हारे सिपाही कहते हैं कि उसे खत्म कर देना बेहतर है, तुम क्या करोगे? तलहा बोला, मैं दुश्मन को कैद कर लूंगा ताकि आइंदा नुकसान ना हो। हारिस ने कहा, मैं फैसला सरदारों पर छोड़ूंगा, वो जो कहीं वही होगा। जमाल ने कहा, मैं पानी पिलाऊंगा, जख्म पर मरहम रखूंगा, क्योंकि जो दुश्मन कमजोर हो जाए वो इम्तिहान नहीं मौका बन जाता है। जैद की नजरों में चमक आई। वो जानता था कौन सच के करीब है। अब तीसरा और आखिरी सवाल, अगर तुम्हें ताज, तख्त, दौलत सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक ऐसा फैसला करना हो जो तुम्हारे खिलाफ हो, तो क्या करोगे? तलहा खामोश हो गया। हारिस उलझ गया। जमाल ने कहा, अगर सच का तकाजा यही हो कि मैं अपनी बादशाही छोड़ दूं, तो मैं ताज उतार दूंगा, क्योंकि मेरे रब के हां मेरी सच्चाई ज्यादा कीमती है, बादशाही नहीं। जैद ने सबको देखा, चादर को लपेटा और खड़ा होकर बोला, मैं फैसला कर चुका हूं, लेकिन यह फैसला किसी तख्त के लिए नहीं। आज जिसने सच को चुना वो दिलों का बादशाह है। जो वक्त आने पर मुड़ जाए वो कभी आगे नहीं जा सकता। फिर इसने शहजादा जमाल के कंधे पर हाथ रखा और सबके सामने ऐलान किया, तुमने बादशाही को नहीं इंसानियत को चाना, और यही अक्ल की मेराज है। तलहा और हारिस सर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने शिकस्त नहीं, खुद को पहचाना। जैद ने कहा, तुम दोनों को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि खिदमत का मौका मिलेगा। तुम गांव, मदरसे और मस्जिदों के जिम्मेदार बनोगे, ताकि जो इल्म सीखा वो अगले दिलों में मुंतकिल हो। खलीफा खामोशी से आया, जैद को गिले लगाया और कहा, तो वाकई ऊंट वाला नहीं अक्ल वाला है। जैद ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सिर्फ वो आईना हूं जिसमें इंसान खुद को देखता है। बगदाद की सुबह कुछ और ही रोशन थी। शाही महल के अतराफ सिर्फ सूरज की किरणें नहीं, एक नई फिजा चमक रही थी। कल रात जैद ने चादर समेटकर वो फैसला दिया था जिसने सिर्फ बादशाह नहीं, बगदाद की रूह को बदल दिया था।
शहजादा जमाल, जिसके सर पर अब बादशाही का ताज था, रात भर सो ना सका। दिल में एक इज़्तिराब, एक ख्वाहिश और एक उलझन गूंजती रही। ज़ैद जा रहा है, मगर वो साथ एक तालिबे इल्म ले जाना चाहता है। क्या मैं वो हो सकता हूं? वो सवाल शायद तख्त के लायक न था, मगर एक इंसान के अंदर की गहराई को झंझोड़ने के लिए काफी था। दूसरी तरफ ज़ैद खानका के पीछे एक पुराने हुजरे में बैठा अपना सादा सा सामान बांध रहा था। एक पुरानी किताब, एक मिट्टी की दवात और वही खाली तस्बीह जिस पर कभी वो सवाल गिनता, कभी दुआएं। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। ज़ैद ने दरवाजा खोला तो सामने जमाल खड़ा था, वही शहजादा, मगर अब एक नए रंग में। ना शाही लिबास, ना पहरेदार, ना गुरूर, बस एक सादा सफेद लिबास, नंगे पांव और आंखों में अज़्म। मैं हाजिर हूं, तालिबे इल्म बनने के लिए, जमाल ने कहा। ज़ैद ने नजरें झुकाएं, मुस्कुराया और कहा, तालिबे इल्म वो होता है जो सवाल पूछे, सच सहले और जवाब का इंतजार करे। तुम अब भी हुक्म देने आए हो, आ सीखने। जमाल ने अपने जूते ज़ैद के कदमों में रख दिए और जमीन पर बैठ गया। अब मैं वो नहीं जो तख्त पर बैठा है, अब मैं वो हूं जो सच के सामने झक रहा है। ज़ैद ने कहा, फिर सुनो, सीखने की पहली शर्त है छोटा होना और दूसरी शर्त तन्हा होना। जमाल ने पूछा, तन्हा? हां, क्योंकि इल्म तन्हाई में पलता है और फिर कौमों में तकसीम होता है। तुम्हें मेरे साथ बियाबान जाना होगा, जहां ना महल है ना गुलाम, सिर्फ तुम, मैं और सवाल। चंद दिन बाद बगदाद की फसील से बाहर एक छोटे काफिले ने शहर को अलविदा कहा। काफिले में सिर्फ दो लोग थे, एक कुम्हार का बेटा और एक बादशाह का बेटा। यह काफिला किसी तिजारत जंग के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि इल्म की तलाश में निकल रहा था। सहरा की गर्म हवाएं, रेत के तेज तूफान और अंधेरी रातें, इन सब ने जमाल को वो सबक सिखाने शुरू किए जिनकी किताबों में गुंजाइश नहीं थी। पहला दिन ज़ैद ने सिर्फ खामोशी इख्तियार की, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। जमाल ने बर्दाश्त किया। दूसरा दिन ज़ैद ने पानी का मशकीज़ा जमाल को दिया और कहा, यह पूरे दिन के लिए है। हम 3 लोग हैं, लेकिन पानी 2 आदमियों के लिए है। तीसरे के लिए तुम्हें खुद इंतजाम करना है। 3 लोग? हां, तुम, तुम्हारा नफस और तुम्हारा तकब्बुर। जमाल चौंका। अब वो समझ रहा था कि यह सफर जिस्म का नहीं, रूह का था। तीसरे दिन ज़ैद ने कहा, कभी ऊंचा बोलने से अक्ल नहीं बढ़ती और कभी खामोश रहने से कम भी नहीं होती। सीखना है तो खामोशी से दोस्ती कर लो। चौथे दिन जमाल ने पूछा, उस्ताद, आपने क्यों दरबार छोड़ा? वहां सब आपकी इज्जत करते थे। ज़ैद ने नजरें आसमान की तरफ उठाकर कहा, इज्जत वो हो जो दिल में हो। दरबार में जो इज्जत दी जाती है वो अक्सर खौफ में लिपटी होती है। 5वें दिन ज़ैद ने इसे एक अजीब जगह ले गया, एक छोटा सा वीरान गांव, जहां सिर्फ चंद बूढ़े लोग बच गए थे। वो बिखरे हुए, भूले बसरे और बज़ाहिर बेकार नजर आते थे। ज़ैद ने कहा, ये लोग बगदाद की बुनियाद थे। इनमें से हर एक ने कभी किसी बादशाह को राह दिखाई थी, मगर अब वक्त उन्हें भूल गया। जमाल ने आंखों में नमी के साथ कहा, तो क्या वक्त भी बेवफा होता है? ज़ैद ने कहा, नहीं, हम लोग होते हैं जो वक्त को भूल जाते हैं। वक्त कभी किसी को नहीं भूलता। 6ठे दिन ज़ैद बीमार हो गया। सफर की मशक्कत, धूप और थकन ने इसके बदन को कमजोर कर दिया। अब जमाल को उसकी खिदमत करनी पड़ी। वही जो कल उस्ताद था, आज शागिर्द का मोहताज हो गया। ये वो लम्हा था जहां जमाल के अंदर का बादशाह मर गया और एक सच्चा तालिबे इल्म जन्म लेने लगा। ज़ैद ने हल्की आवाज में कहा, यही सीखना था। बादशाही तब आती है
जब तुम किसी का पानी भरने से न कितराओ और किसी के पांव दबाने से न शर्माओ। शाम को जैद ने कहा, कल हमारा आखिरी दिन होगा, इसके बाद तुम वापस जाओगे, मगर जो तुम लौटाओगे वो तुम्हारा फैसला करेगा। जमाल ने पूछा, क्या आप वापस नहीं चलेंगे? जैद ने कहा, जो तालिब इल्म मुकम्मल हो जाए वो उस्ताद को पीछे छोड़ देता है। कल मैं तुम्हें वो सच दूंगा जो तख्त से भी ज्यादा कीमती है। जमाल की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। अब वो वही नहीं था जो ताज पहनता था, अब वो था जो दिल पहनता था। सुबह की सुनहरी किरणें अभी मुकम्मल तौर पर सहरा की रेत पर नहीं बिखरी थीं। हल्की सी खुनकी, खामोश फिजा और परिंदों की मध्यम चहचहाहट सब मिलकर एक अजीब सा सुकूत पैदा कर रहे थे। ये वो सुबह थी जो आम दिनों की तरह ना थी। आज जैद और जमाल के सफर का आखिरी दिन था। जैद ने जमाल को जागने से पहले ही जगा दिया था। चिल्लू, तुम्हें एक जगह ले जाना है। जमाल, जो अब बादशाह से ज्यादा शागिर्द बन चुका था, बगैर कुछ पूछे जैद के पीछे रवाना हो गया। उनके कदम खामोश थे, जैसे रेत पर चलते नहीं, सोचते हों। कुछ देर बाद वो दोनों एक पुराने खंडर के पास पहुंचे। एक बोसीदा टूटी हुई खानका जिसकी दीवारों पर वक्त की गर्द जिमी थी। जैद वहां रुका, छत के नीचे खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, यह जगह कभी इल्म का कला थी। यहां वो लोग आया करते थे जो बादशाहों को चिल्लाते थे मगर खुद किसी तख्त पर ना बैठे। जमाल ने हैरानी से पूछा, यहां कोई रहता है? जैद ने आहिस्ता कहा, नहीं, मगर यहां राज रहते हैं। जमाल खामोश हो गया। वो जानता था कि आज इसे कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो सिर्फ समझने के लिए होता है, बोलने के लिए नहीं। जैद ने एक पुरानी चट्टान के नीचे से एक लकड़ी का डब्बा निकाला, छोटा सा, मिट्टी से भरा हुआ। इसके अंदर एक चमड़े की जिल्द में लिपटा हुआ पुराना कागज था। जैद ने वो कागज जमाल को देते हुए कहा, यह वो राज है जो मेरे वालिद ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसमें वो दुआ है जो अगर दिल से पढ़ी जाए तो इंसान खुद को पहचान लेता है। जमाल ने कपकपाते हाथों से वो कागज खोला। इस पर लिखा था, ए अल्लाह पाक, मुझे वो नजर दे जो चमकती चीजों से ना डरे। मुझे वो दिल दे जो तख्त से पहले इंसान देखे, और मुझे वो जुबान दे जो सच बोलने से ना हिचकिचाए, चाहे सुनने वाला बादशाह हो या फकीर। आमीन। जमाल की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये अल्फाज दुआ से ज्यादा रास्ता थे, एक रास्ता जो बादशाही से नहीं, खिदमत से निकलता है। जैद ने कहा, तुम अब वापस जाओ, बगदाद को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन याद रखना, इल्म खत्म नहीं होता, वो मुंतकिल होता है। तुम्हारे बाद भी कोई आएगा जो तुम्हें इसी तरह देखेगा जैसे तुमने मुझे देखा था। से सुनना, और अगर वो तुमसे आगे निकल जाए तो हसद मत करना, इसकी राह रोशन करना। जमाल ने जैद के कदमों को छूना चाहा, मगर जैद पीछे हट गया। नहीं, अब तुम वो हो जिसे सजदे नहीं सच चाहिए। चंद दिन बाद बगदाद के दरबार में तब्दीली की एक नई लहर आई। जमाल अब बाकायदा बादशाह बन चुका था, मगर उसकी हुकूमत रिवायती बादशाहत से मुख्तलिफ थी। वो रोज दरबार से पहले 1 घंटा आम लोगों के दरमियान बैठता, उनकी बात सुनता, सवालात करता और खुद से सीखता। उसने शहजादा तलहा को मदारिस के निजाम का निगरान बना दिया ताकि वो वही ताकत तालीम के लिए इस्तेमाल करे। हारिस को बैत अलमाल की निगरानी दी ताकि दौलत का बहाव इंसाफ से हो। मगर हर रोज दरबार में एक कुर्सी खाली रहती थी जैद की। वो कुर्सी किसी को नजर ना आती, मगर जमाल जानता था कि वो वहां मौजूद है, इसकी सोच में, इसके फैसलों में और हर इस अमल में जो इंसानों को तख्त से करीब लाता है। महीनों बाद एक छोटे काफिले ने बगदाद के दरवाजे पर दस्तक दी। एक नौजवान जो दौर के गांव से था,
जमाल से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी जमाल की आंखों में जैद ने देखी थी। नौजवान बोला, बादशाह सलामत, मैं सीखना चाहता हूं। जमाल मुस्कुराकर उठा, अपनी तलवार, ताज और खिलत उतार कर इस नौजवान के सामने रखा। तो सीख ले, क्योंकि आज तो तालिबे इल्म है, कल तो मेरा उस्ताद बनेगा। जैद ने जो इल्म दिया था वो खत्म नहीं हुआ था, वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो चुका था। और यूं बगदाद को वो बादशाह मिला जिसने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि अक्ल, रहम और सच्चाई से अपनी सल्तनत का नक्शा खींचा। कुम्हार के बेटे का सबक सिर्फ एक नस्ल के लिए ना था, बल्कि हर इस इंसान के लिए था जो दिल से बादशाह बनना चाहता हो।